Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel Learning Passion, and you're learning with Krishna Singhania. Hello, guys, all my friends from class 9 who are watching my this channel. To learn 9 SST, please get ready because we are going to end our first chapter, that is French Revolution, by learning its sixth and final topic today. गाइस हमने अभी तक फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया जिसमें हमने देखा कि लुई 16 की ट्रेजरी खाली क्यों थी एंड दैट अदर रीजन देन वी सॉ स्टेट जनरल मीटिंग इन सेकंड टॉपिक इन थर्ड टॉपिक वी सॉ अबाउट that Louis 16 was not happy with all the changes, and then we saw about the reign of terror. Then in fourth topic we saw importance of women in France in French Revolution. In fifth topic we cover the slave trade in France, and today the revolution in everyday life of France. So guys, this is the end of the chapter. This is the end topic of the chapter, bringing the conclusion of all chapter. You will get what actually learned from this chapter. We will also see in this topic about Napoleon Bonaparte in little brief. We will see in little and other things also. So we know that politics in France had brought lots of changes in the lives of men, women, and children. Because everyday revolutions were bringing some new changes in the constitution or in we can say politics of France, which was leading little to development or betterment of the life of citizens living there. Okay, and these changes were necessary because as time passes, people get revolutionary. टाइम टू टाइम दे वांट चेंजेस फॉर देयर बेटरमेंट. ठीक है, अगर आप चेंजेस जैसे वी सॉ इन इफ वी सी इन आवर ओन कंट्री, अगर हम आई गवर्नमेंट अगर टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं लाएगी, कुछ हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी, तो नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल वुड नॉट वोट दैट गवर्नमेंट पार्टी. ओके, सो लाइक दिस हैपन इन फ्रांस ऑल्सो. अगर गवर्नमेंट रिवॉल्यूशन लाएगी तभी तो लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं तो लोग रिवोल्ट कर देंगे अगेंस्ट में. So one of the important change that came after 1789 when Bastille was stormed was that there was abolition of censorship in France. Censorship मतलब if we see in India also, अगर कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है कि वो चेक होती है मूवी की उसका कंटेंट अप्रोप्रिएट है क्या, वो कंटेंट से किसी हम कम्युनिटी को टारगेट तो नहीं कर रहे, वो कंटेंट से किसी हम हिस्ट्री के किसी इवेंट को तो चेंज नहीं कर रहे. Like that movie goes through censor board, and censor boards bring suggest something changes to a filmmaker or any director producer कि आपके फिल्म में ये पार्ट थोड़ा चेंज कीजिए because this according to us will being to community guidelines against it will go. Okay, तो ऐसा सेंसर बोर्ड काम करता है. एंड दैट टाइम इन फ्रांस सेंसर बोर्ड वाज देयर ऑफ किंग. ठीक है, तो जो भी न्यूज़पेपर छपता था या फिर कोई ड्रामा लिखा जाता था या फिर कोई सॉन्ग लिखा जाता था, तो दैट वाज यूज्ड टू पास थ्रू सेंसर बोर्ड. नाउ व्हाट सेंसर बोर्ड यूज्ड टू डू, इट वुड चेक दैट इसमें कोई हमारे राजा यानी लुई 16 के खिलाफ तो कुछ नहीं है, यानी न्यूज़पेपर में there is nothing against Louis 16 or there is nothing against the government or any working of government or any policy of the government. ठीक है, ऐसा चाहता था जिससे लोगों के बीच में रिवॉल्यूशन ना हो. एंड आफ्टर 1789 when Bastille was stormed, the censorship was removed from the newspapers, from dramas, plays and everything. तो इससे क्या होता था, अब जो लोग थे वो खुलेआम अपने व्यूज शेयर कर सकते थे थ्रू दिस मीडियम. एंड वन ऑफ द बेनिफिट वाज दे कुड गिव द नेगेटिव कमेंट्स आल्सो. अगर कोई समझ लीजिए रिवॉल्यूशन हो रहा है, फिर कोई पॉलिसी पास हुई है या फिर कोई एक्ट हो रहा है, तो उसका निगेटिव इफेक्ट भी वो लोग बोल सकते थे लोगों को डायरेक्टली. नाउ इट नॉट नीड टू बी गो थ्रू सेंसरशिप. ओके, so this was happening in France, and one of the benefit of this was कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो ही सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, पर जो भी ड्रामास, ये प्लेज या रैलीज या फिर वी कैन से डिफरेंट सॉन्ग्स वर sung in common without censorship. Okay, this is all without censorship. So what would happen कि जो uneducated लोग हैं who did not have direct access to education, who were not able to read and write, they could also understand the current changes going on in the city and what will be its impact in future. ठीक है, तो अब उनको भी फायदा होने लग गया था इससे, और इसलिए क्या होता, मोस्ट ऑफ द पीपल वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दिस. ओके, so this was about the France in after 1789, which shows
how that everyday changes came into life of people when Bastille was stormed. Now let us see about the Napoleon Bonaparte. So Napoleon Bonaparte was actually a very great leader and great ruler, but the way he was working was little bad and little inappropriate. Okay, like when he conquered the France, he first started to make more colonies and bring other nations in merging with its own nation. Okay, वो दूसरे किंगडम्स पे अटैक करता था जिससे वो भी फ्रांस में ही मिल जाए. So this was one of the good work he was doing. But what he was also doing, वो जो भी किंगडम कैप्चर करता वहां पे अपने फैमिली के किसी पर्सन को राजा बना देता था. Means what he was doing, he was not giving that property to government, he was making one of his members, family member, to a king of that place. Means जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हो जाती थी, नेपोलियन बोनापार्ट की, नॉट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस. ओके, बट उन्होंने कुछ अच्छे चेंजेस भी लाए, जैसे कि उन्होंने जो था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. मतलब मीन्स जैसे अब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी ली, तो आपसे अब वो प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता, या फिर उस पर कोई इलीगली काम नहीं कर सकता, या फिर उस पर कब्जा नहीं कर सकता. ओके, नाउ दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, एंड इफ एनीबॉडी ट्राइज टू से आपको अगर धमकाता है या डराने की कोशिश करता है वो आपकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए, सो यू कैन केस अगेंस्ट दैट पर्सन टू गेट अ जस्टिस. Okay, then uniform system of weights and measures were provided by the decimal system. अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, समझ लीजिए. इफ वी सी इन वन सिटी, जैसे आप समझ लीजिए मैं नागपुर में हूँ, तो नागपुर में 1 किलो में समझिए आपको 1 किलो केले में आपको 10 केले मिल जाएंगे. 1 किलो केला अगर आपने मांगा तो आपको उसमें 10 केले देगा, और समझ लीजिए आपको लेगा उसके 50 रुपए. बट नाउ इफ आई गो इन मुंबई, सो देयर इज व्हाट हैपनिंग, वो मुझे 1 किलो में सिर्फ 8 केले ही देगा और मुझसे 60 रुपए लेगा. 1 किलो में 8 केले देगा और 60 रुपए लेगा. तो व्हाट हैपन, देयर इज इम्बैलेंस इन वेट्स एंड मेजर्स ऑफ बोथ द सिटीज. ठीक है, उनके वेट्स में और उनके प्राइसेस में बैलेंस है, अप एंड डाउन से. उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर्म नहीं होगा ऑल ओवर द कंट्री. And to avoid this, what Napoleon Bonaparte did in his own country, उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ला दिया था वेट्स एंड मेजर्स का, कि ऑल ओवर कंट्री सिर्फ ये ही एक वेट्स मेजर्स का सिस्टम जो है फॉलो होगा, एंड नोबडी विल फॉलो द अदर. ठीक है, अब जाते जाते किधर अलग अलग टोल टैक्स लगते थे रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन पे. तो समझ लीजिए अगर आपके ट्रक का वेट होता है 50 किलो, तो समझिए अगर नागपुर में है तो आपको 1 किलो पर 1 किलो आपको समझिए 2 रुपए टोल टैक्स लगेगा. ऐसा नागपुर में. इफ यू गो इन मुंबई यू गेट रुपीज 4 रुपीज पर किलो एज टोल टैक्स. तो ये टोल टैक्स भी सब जगह अनयूनिफॉर्म था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे भी यूनिफॉर्म कर दिया था हर जगह. And what people thought कि Napoleon is very good person, he is bringing many changes in the country, he would be a good leader and would lead to development of our country. Okay, बट सून क्या हो गया था, सब जगह लोगों को नेपोलियन की आर्मी दिखती थी ऐसे आपको कंट्रोल करते हुए, ए चल ऐसा कर वैसा कर, लाइक दिस. everywhere you can see Napoleon army controlling the people, and due to this all were very harassed from the Napoleon policies, and then finally he was defeated at Waterloo in 1815. भले ही नेपोलियन को अच्छे व्यूज के लिए जाना जाता था, फॉर द व्यूज ऑफ हिज लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉस, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए उसे पूरे यूरोप में पहचाना जाता था, बट हिज वे ऑफ गेटिंग लिटिल ग्रीडी डिफीटेड हिम इन एट वाटरलू. तो हमने देखा कि फ्रांस में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स एबॉलिश होने लग गई थी ऑल ओवर द कंट्री. And one example is given of India here, that Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy. Okay, अन्य सिर्फ राम मोहन रॉय लिखा है, कंप्लीट नेम इज राजा राम मोहन रॉय. आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. हु फाइट अगेंस्ट द सती सिस्टम, आई थिंक सो. ओके, तो so Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to ideas coming from France. यानी उनको भी जो फ्रांस में जैसे सिस्टम्स आ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट, दिस नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सिस्टम्स लाए थे उससे इंस्पायर हुए थे टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय, एंड दे आल्सो ट्राई टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन देयर किंगडम्स और टेरिटरीज.
Okay, so friends, here we have completed the first chapter, that is French Revolution. Here are textual questions which you need to go through by your own. Here nothing to be done of mine. मैंने कहा था हम जब क्वेश्चन आंसर्स में आपको कैसे लिखते हैं सिखाऊंगा, तब हम थोड़े इनमें से एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, मैंने आपको टॉपिक पढ़ते वक्त भी सारे क्वेश्चंस बताए थे कि कौन से इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू कैन डू इट। लास्ट वी विल गो वंस थ्रू मैप। ये चैप्टर से मैप आता है, तो एक बार मैं आपको मैप बता दूं। So here is map. So see everyone, I will just little zoom it. Okay, so this is map of France. So usually 4 points are being asked of this map. First is Paris. Here is Paris. Then Nantes and Bordeaux. हमने देखा है दो important ports थे of France. हमने in abolition of slave trade हमने देखा था, ये दो important ports थे जो flourish हुए थे through slave trade only. So Nantes and Bordeaux, and here is Marseilles, where that war was beginning of French people through National Assembly. Okay, so this was the important map points to be noted. आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर आपके नोटबुक में पॉसिबल तो ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज यही मैप आपको फर्स्ट यानी प्री मिड टर्म में पूछा जाएगा. So you can prepare this map also. So here I have completed your chapter. These questions you need to do. मैंने ये सारे questions कवर कर लिए हैं मेरे वीडियोस में. अगर आपने मेरी वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेपर प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा. यू विल गेट वन टाइमलाइन आल्सो, यू विल गेट योर टेक्स्ट बुक आल्सो, क्योंकि मेरे ख्याल से लॉकडाउन के कारण आपको शायद स्कूल से टेक्स्ट बुक्स ना मिली हो, तो आपको ये पीडीएफ फाइल नीचे मिल जाएगी. प्लस एज आई सेड, आपको मैंने जब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने बताया था आपको कि उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क के इन द बिगनिंग. तो मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट बनाई है 1 मार्क की, वो नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. वो पीडीएफ सॉरी एक वर्ड फाइल है, तो आपको उसमें टोटल 190 क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क ईच के. तो ठीक है, आप उनके थ्रू एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. आप लिखना है ना लिखना वो आप पे है, बट इफ यू विल गो थ्रू यू विल गेट वन आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड वो कितने डिटेल में जा सकते हैं. ओके, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक बटन. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप मुझे कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू वे आई स्पीक और वे आई मेक माय वीडियोस, तो आप नीचे कमेंट में प्लीज 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 मुझे बताइए. I will definitely try to bring these changes as soon as possible. So thank you friends and best of luck. I think you all are well with your family. आप उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, and I wish your family stay healthy and good. So signing out, Krishna Singhania. Keep watching Learning Path.